Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope that you all are fine and doing great. Today we are going to start our lecture number 5 of grade 3rd science. So student, first of all, open the planner. Open the page G of your planner. On the week number 5, point number 1, workbook page number 18 and 19. We will learn today, and then you will revise the unit at home. The next workbook page number 20, we will do this page when you come to school, and the next assessment of unit number 2, and the last point, unit number 3, living on earth, reading. Okay, so we will do the point number 1 and the last point of week number 5, mention date and day, and open the page number 18. On the workbook page number 17 and 20, we have some fun activities, and we will do these activities when you come to school. Dear student, open the page number 18, mention date and day, think and write. Okay, do you have first aid kit at home? Unscramble the words and see if you have these in the kits. Okay, so do you have first aid kit at your home? First aid kit. So what is first aid? The immediate help given to an injured person before the arrival of doctor is called first aid. Okay, किसी भी injured person को, ज़ख्मी आदमी को डॉक्टर के पहुंचने से पहले जो भी इमदाद दी जाती है उसे हम फर्स्ट एड कहते हैं, जिसे हम उर्दू में तिब्बी इमदाद कहते हैं. ओके, सो फर्स्ट वन इज as these are some jumble words and you have to write them in this column or box. First one is scissor, SCISSORS, scissor. Okay, so scissor is a part of first aid kit. To cotton, bandage, tape, and antiseptic. Okay, so these 5 things are the main part of first aid kit. Next we have oral project. Students, come to the next page number 19, crossword puzzle. Okay, so first solve this crossword puzzle. Which word do you get in the shaded column? Okay, here a shaded column is given here. First you have to fill all these blanks given here with the help of these diagrams. So first one is the nose, part of our body, that is nose. We have write N-O-S-E, nose. In the second, ears, E-A-R-S, ears. Third, lungs, L-U-N-G-S, lungs. We breathe through our lungs. Okay, next, heart. Heart is a pumping organ, H-E-A-R-T, heart. Next, tongue. Fifth one is tongue, T-O-N-G-U-E, tongue. We can taste different food items with the help of our tongue. Sixth one is eyes, E-Y-E-S, eyes. Okay, so we can see different things in the world with the help of our eyes, and we can smell different odors with the help of our nose, and we can hear different sound with the help of our ears. Okay, so nose, ears, lungs, heart, tongue, eyes. So which word do you get in the shaded column? This is the shaded column, and which word do you get in this column? O-R-G-A-N-S, organs, organs. Okay, so all these 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 are the sense organs. Okay, and we can sense the world around us with the help of these organs. These are the sense organs. So students, write here in this box organs. Come to the next page. So students, open the page number 23 of your textbook. Part 2, living things. Unit number 3, living on earth. Living means jandar, earth zameen. Okay, we will study about living things that are present on the earth. Okay,
as living thing. What are living things? Living things can grow, living things can move, living things take in food. Okay, I'm going to start a reading of unit number 3. Living things move, grow, eat or take in food, feel, breath and reproduce. Okay, लिविंग थिंग्स जानदार चीज़ें, मूव हरकत कर सकती हैं, ग्रो बढ़ सकती हैं, ईट खा सकती हैं, फील महसूस कर सकती हैं, ब्रेथ सांस ले सकती हैं एंड रिप्रोड्यूस जनरेट कर सकती हैं. ओके, अपने बेबीज़ को रिप्रोड्यूस कर सकती हैं, पैदा कर सकती हैं. ओके, सो लिविंग थिंग्स के ये करेक्टर्स आ रहे हैं जिनके बारे में बताया कि हम भी लिविंग थिंग्स हैं. ह्यूमंस आर ऑल्सो लिविंग थिंग्स. और क्योंकि हम लिविंग थिंग्स हैं, हम हरकत भी कर सकते हैं. लिविंग थिंग्स कैन मूव, ग्रो, ईट, फील, ब्रेथ एंड रिप्रोड्यूस. ओके, अब नॉन लिविंग थिंग्स की बात आ जाती है. नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट डू एनी ऑफ दीज. नॉन लिविंग थिंग्स इनमें से कोई भी काम नहीं कर सकते. ना ही वो मूव कर सकते हैं, ना ही ग्रो कर सकते हैं, ना ही फील कर सकते हैं, और ना ही सांस ले सकते हैं, ना ही रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. ओके, सो नेक्स्ट वी हैव टॉपिक इज मूवमेंट. मूवमेंट मीन हरकत करना. ओके, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स मूव, हरकत कर सकते हैं. अब प्लांट्स और एनिमल्स किस में इंक्लूडेड हैं? लिविंग थिंग्स में, नॉन लिविंग थिंग्स में? लिविंग थिंग्स में. और अब आ जाती है बात प्लांट्स और एनिमल्स की कि जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो मूव कर सकते हैं. अब आप कहेंगे कि सोचेंगे कि एनिमल्स तो मूव कर सकते हैं, लेकिन प्लांट्स कैसे मूव कर सकते हैं? प्लांट्स तो मूव हरकत नहीं कर सकते. प्लांट्स मूव ओनली अ लिटिल. प्लांट्स बहुत थोड़ा मूव करते हैं, उनकी मूवमेंट जो होती है लिटिल बिट होती है. दे डू नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते. बट देयर लीव्स और फ्लावर में मूव. उनका कोई बॉडी पार्ट होता है जो कि मूव करता है. ओके, वो बॉडी पार्ट कौन से होते हैं? लीव्स और फ्लावर, वो मूव करते हैं थोड़ी. ओके, बट देयर लीव्स और फ्लावर में मूव. फॉर एग्जाम्पल, द पेटल्स ऑफ द मॉर्निंग ग्लोरी ओपन ईच मॉर्निंग. ओके, यू सी दिस प्लांट, दिस इज मॉर्निंग ग्लोरी एंड द पेटल ऑफ दिस प्लांट ओपन एवरी मॉर्निंग. ओके, हर सुबह इसकी जो पेटल्स होते हैं, पेटल्स क्या होते हैं? द आउटर द ग्रीन कलर्ड पार्ट ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड पेटल. सो इसके जो पेटल्स होते हैं वो हर सुबह ओपन हो जाते हैं, खुल जाते हैं, खिल जाते हैं. ओके, द नेक्स्ट वी हैव सनफ्लावर. द सनफ्लावर टर्न्स इट फेस टूवर्ड द सन. अब सन जो है, सनफ्लावर सूरजमुखी का जो पौधा होता है, उसका जो फूल होता है, वो उसके जो फूल की मूवमेंट होती है या फिर डायरेक्शन जो होती है वो किसकी तरफ होती है? सूरज की तरफ होती है. जहाँ जहाँ सूरज जो है जाएगा वो अपनी फ्लावर की डायरेक्शन बिल्कुल इसके अकॉर्डिंगली करेगा. ओके, सो दिस इज सम काइंड ऑफ मूवमेंट दैट द पार्ट्स ऑफ दीज प्लांट शो दैट लीव्स एंड फ्लावर मूव. ओके, एनिमल यूज देयर लेग्स. अब प्लांट्स जो अपने कोई बॉडी पार्ट्स को सिर्फ मूव करते हैं. अब एनिमल्स मूव तो करते हैं, लेकिन किसकी मदद से? यूज़ देयर लेग्स, अपनी टांगों को यूज़ करके, इस्तेमाल करके. टू मूव, हरकत करते हैं. टू सर्च, ताकि वो तलाश कर सकें. फॉर फूड, अपने लिए खुराक, खाना तलाश कर सकें. और escape फ्रॉम देयर एनिमीज. एनिमीज मीन दुश्मन. ठीक है, या फिर अपने दुश्मनों से या फिर प्रीडेटर से बच सकें. एनिमल्स विदाउट लेग्स. अब ऐसे एनिमल जिनके पास लेग्स ही नहीं होंगी, वो कैसे मूवमेंट शो करेंगे? वो क्या करेंगे? क्रॉल करेंगे. ठीक है, क्रॉल मीन रेंगना. अब इसकी एग्जांपल में क्या आता है? स्नेक की लेग्स नहीं होती हैं, लेकिन वो क्रॉल कर सकता है, रेंग सकता है. और स्लाइड बाय मूविंग देयर बॉडीज. अपनी बॉडीज को मूव करके वो क्रॉल कर सकते हैं. सम एनिमल्स हैव विंग्स एंड कैन फ्लाई. अब ऐसे एनिमल्स जिनके पास टांगे नहीं होती, या तो फिर वो क्रॉल करते हैं या फिर वो उड़ सकते हैं. जैसे कि अपनी विंग्स की मदद से उड़ सकते हैं. फॉर एग्जांपल बटरफ्लाई, स्पैरो, इनके पास लेग्स भी होती हैं, इनसे मूव भी कर सकते हैं, लेकिन इनके पास विंग्स होते हैं जिससे वो फ्लाई कर सकते हैं, उड़ सकते हैं. ऑन द नेक्स्ट पेज नंबर 24 वी हैव अ पिक्चर ऑफ लिविंग थिंग्स. That first one is a horse gallops. Okay, a horse gallops means के तेजी से दौड़ता हुआ, भागता हुआ घोड़ा जो अपनी चारों टांगों को इस्तेमाल करके दौड़ रहा है. नेक्स्ट है a bird.
A bird flies with the help of his wings. Okay. A centipede crawls. Okay. Crawl mean रेंगना. A boy walk. अब जो लड़का है वो भाग रहा है या फिर चल रहा है विद द हेल्प ऑफ हिज लेग्स. ओके. नेक्स्ट ग्रोथ. ग्रोथ मीन बढ़ना. ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो. जितने भी जानदार चीज़ें हैं वो ग्रो कर सकती हैं, बढ़ सकती हैं. दे गेट बिगर. ग्रो कैसे होते हैं? वो अपने साइज, अपने डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को जो होते हैं वो बढ़ते हैं. दे गेट बिगर, वो बड़े होते हैं. एंड दे चेंज शेप, और उनकी शेप चेंज हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल जब कोई भी बेबी होता है तो उसकी शेप जो होती है चेंज होती है. उसकी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स डिफरेंट और दिखाई देते हैं. जबकि जब वो बड़ा हो जाता है तो वो उसकी शेप ही चेंज हो जाती है. ओके. दे चेंज शेप एज दे गेट ओल्डर. जूनियर वो बड़े होते हैं उनकी शेप ही चेंज हो जाती है, उनकी शक्ल चेंज हो जाती है. बेबी एनिमल्स बिकम अडल्ट. अब जैसे देखते हैं कि बेबी एनिमल्स जब अडल्ट बन जाते हैं. ओके. एज दे ग्रो दे बिगैन टू लुक मोर लाइक देयर पेरेंट्स. ओके. जो बेबीज़ जो हैं वो ग्रो करते हैं, वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स जैसे दिखने शुरू हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अब प्लांट्स की एग्जाम्पल लेते हैं. हम किसी सीड को बो करते हैं देन अ सीड ग्रोज इनटू अ प्लांट. वही सीड किस में ग्रो करता है? प्लांट में ग्रो करता है. नेक्स्ट, अ डकलिंग ग्रोज इनटू अ डक. ओके. अ डकलिंग ग्रोज इनटू अ डक. जो वो ग्रो करेगा अपने पेरेंट्स की तरह दिखेगा. अब बेबी ग्रोज इनटू एन अडल्ट. बेबी जब ग्रो करेगा तो वो बिल्कुल बड़ा जब हो जाएगा तो वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स जैसे दिखेगा. नेक्स्ट आ जाता है फीडिंग. ओके. फीडिंग मीन खुराक को लेना, टेक इन फूड. अब लिविंग थिंग्स जो हैं वो ज़ाहिर बढ़ते हैं, मूव करते हैं. उनको ये सब काम करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है. और वो एनर्जी कहाँ से लेते हैं? फूड से लेते हैं. और उनके फूड को लेने का जो प्रोसेस होता है या फिर अंदर लेने का, खाने का जो प्रोसेस होता है उसे फीडिंग कहते हैं. विदाउट द फूड एंड वाटर. अब फूड और वाटर के बगैर लिविंग थिंग्स वो डाई, लिविंग थिंग्स मर जाएंगे. ओके. एज फूड एंड वाटर gives them energy to living things to stay alive. Okay. Some animals eat plant. अब कुछ एनिमल्स की बात आ जाती है कि कुछ एनिमल्स प्लांट्स को खाते हैं. Some animals eat other animals. कुछ एनिमल्स जो होते हैं दूसरे एनिमल्स को ही खाते हैं. ओके. अब कुछ some animals eat plant. जो एनिमल्स प्लांट्स को खाते हैं उसकी एग्जाम्पल में क्या आते हैं? रैबिट, गोट. प्लांट्स को खाते हैं ना. गोट जो है घास खाती है. सम एनिमल्स ईट अदर एनिमल. अब कुछ एनिमल्स होते हैं वो दूसरे एनिमल्स को, दूसरे जानवरों को खाते हैं. ओके. एज द फॉक्स ईट मीट ऑफ चिक. ओके. अ लायन कैन ऑल्सो ईट और फीड ऑन अदर एनिमल्स. ओके. एंड सम ईट बोथ प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स. अब कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो दूसरे प्लांट्स और दूसरे एनिमल्स को दोनों को फीड करते हैं. ओके. इसकी एग्जाम्पल में हमारे पास यहाँ पर क्या आता है? कैट. ओके. कैट जो है, अ कैट ईट मीट. ओके. A squirrel eat nuts. As we are human भी plants और animals दोनों को खाते हैं, feed करते हैं. Dear student, come to the next page number 25. Animals have different types of mouth. Okay, so in this paragraph, in this part, we will learn about different adaptation. Okay, हम animals के अंदर जो adaptation, living things के अंदर adaptations जो होंगी उसके बारे में पढ़ेंगे कि और उनके अंदर कौन कौन से खास फीचर्स हैं जो उनको खाने में हेल्प करती हैं ताकि वो जिंदा रह सकें, सर्वाइव कर सकें. एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउथ. ओके. इनके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउथ होते हैं. इनकी माउथ की शेप चेंज होती है. विद विच दे टेक इन फूड. जिसकी मदद से ये खाना अंदर लेते हैं. बर्ड्स यूज देयर बीक्स. अब बर्ड्स क्या करते हैं? बर्ड्स किससे लेते हैं खाना, खुराक अंदर लेते हैं? बीक, अपनी चोंच से लेते हैं. टू ईट, ताकि वो खा सकें. एंड ऑफन स्वेलो देयर होल फूड. और ये अपना खाना जो है पूरा का पूरा निगल लेते हैं. जबकि हम जो हैं, ह्यूमंस जो हैं, वो अपने खाने को चबाते हैं. ओके. बर्ड्स डू नॉट. अब बर्ड्स के बारे में बात हो रही है. बर्ड्स डू नॉट हैव टीथ. अब इनके पास टीथ नहीं होते, इसीलिए ये पूरा खाना निगल लेते हैं. नेक्स्ट, सम एनिमल्स यूज देयर टंग टू कैच फूड. ओके. अब कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अपनी टंग, जुबान को इस्तेमाल करके अपना फूड, खुराक को पकड़ लेते हैं. ओके. जिन पर ये खाते हैं. फॉर इसकी एग्जांपल में फ्रॉग आ जाती है और लिजर्ड आ जाती है. फ्रॉग एंड लिजर्ड हैव लॉन्ग स्टिकी टंग्स. इनकी लंबी और स्टिकी टंग्स होती हैं.
Sticky means चिपकदार. Long and sticky tongues. Some animals use their teeth to tear, grind and chew their food. अब कुछ एनिमल्स के पास क्या होता है, दांत होते हैं, टीथ होते हैं, ताकि उनकी दांतों की मदद से वो क्या कर सकें, टीयर एंड ग्राइंड, चीर फाड़ सकें और तोड़ सकें और चबा सकें अपने फूड को. ओके. अब इसकी एग्जांपल में इस तरह की एनिमल्स में किसकी एग्जांपल आ जाती है, टाइगर. ये अपने शिकार को या खुराक को चीर फाड़ता है और उसे चबा के अंदर कर लेता है, निगल लेता है. नेक्स्ट, अब एनिमल्स की बात की जाए तो उनके पास बीक होती है, टंग होती है या फिर टीथ होते हैं ताकि वो अपनी खुराक को अंदर ले सकें. अब प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में कौन कौन होते हैं. अब प्लांट्स कैसे आप फूड अंदर लेते हैं, प्लांट्स टेक इन वाटर. अब प्लांट्स वाटर लेते हैं थ्रू देयर रूट्स, अपनी जड़ों से पानी लेते हैं, चूसते हैं. ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड विद एयर, वाटर एंड सनलाइट. जैसा कि प्लांट्स अपनी खुराक खुद बना लेते हैं, लेकिन उनको कोई ना कोई चीज़ चाहिए होती है ताकि जिसकी मदद से वो कुछ अपना खुराक बना सकें. तो फिर वो क्या करते हैं, वो रूट से, ज़मीन से जो है पानी लेते हैं अपनी रूट्स की मदद से, और अपने हवा से, इर्द गिर्द की हवा से एयर लेते हैं और सनलाइट लेते हैं ताकि अपनी खुराक को बना सकें. ओके, विद द हेल्प ऑफ देयर लीव्स. ओके. नेक्स्ट, फीलिंग. एनिमल फीलिंग मीन महसूस करना. लिविंग थिंग्स की एबिलिटी है कि वो महसूस कर सकते हैं. एनिमल्स फील इन डिफरेंट वेज. मोस्ट एनिमल्स सेंस द वर्ल्ड अराउंड दैम बाय यूजिंग देयर आईज, नोज, स्किन, ईयर्स एंड टंग. अब ये सब जो नाम है ये किसके हैं, सेंस ऑर्गन्स के नाम हैं, जो कि आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ भी चुके होंगे, पहले पढ़ भी चुके हैं कि आईज, नोज, स्किन, ईयर्स एंड टंग. और हम जो हैं इन्हीं सेंस ऑर्गन की मदद से अपनी इर्द गिर्द की दुनिया को महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं. ओके. एनिमल यूज देयर सेंस ऑर्गन टू सर्च फॉर फूड एंड टू सेंस डेंजर. अब इन्हीं सेंस ऑर्गन्स को इस्तेमाल करके हम अपने फूड को, खुराक को ढूंढ सकते हैं एंड सेंस डेंजर, और ख़तरे के बारे में भी जान सकते हैं. प्लांट्स डू नॉट हैव सेंस ऑर्गन. अब प्लांट्स के पास तो कोई सेंस ऑर्गन, ये वाली सेंस ऑर्गन्स आईज, नोज, स्किन नहीं होती हैं, बट दे टू कैन फील, बट ये भी महसूस कर सकते हैं. स्टूडेंट, यू सी हियर some insects have feeler. Okay. A cockroach has a feeler. This tube is feeler, and it can feel the world around with the help of the feeler. Next, the leaves of mimosa plant close when you touched. Okay, so this is a plant, and plants can also feel, as you can touch the plant of mimosa, it closes its leaves. Okay. नेक्स्ट, ब्रेथिंग मीन्स सांस लेना. अब लिविंग थिंग सांस भी ले सकते हैं. ह्यूमन्स एंड अदर एनिमल्स हैव नोज, दे ब्रेथ इन एयर. ओके. अब ह्यूमन्स और अदर एनिमल्स जो हैं किसकी मदद से सांस लेते हैं, अपने नाक की मदद से, नोज़ की मदद से सांस लेते हैं, नाक की मदद से सांस लेते हैं. फिर जबकि फिशेस जो हैं, फिशेस ब्रेथ थ्रू गिल्स. फिशेस के पास नोज नहीं होती, वो अपनी गिल्स से सांस लेती हैं. ओके. उनके पास एक स्पेशल ऑर्गन होता है जो कि उनको पानी में सांस लेने में हेल्प आउट करता है, एंड दैट ऑर्गन इज कॉल्ड गिल्स. ओके. प्लांट ब्रेथ टू. अब एनिमल्स तो ब्रेथ कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर नोज एंड गिल्स, जबकि प्लांट भी ब्रेथ कर सकते हैं, लेकिन कौन से पार्ट से, दे टेक इन एयर. ये भी हवा को अंदर लेते हैं थ्रू वेरी टाइनी होल्स इन देयर लीव्स. और वो किसकी मदद से लेते हैं, अपने लीव्स के अंदर छोटे छोटे सुराहों की मदद से लेते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा. ओके. प्लांट्स कैन ऑल्सो ब्रेथ विद द हेल्प ऑफ टाइनी होल्स in their leaves, and these holes are called stomata, and this is stomata. Okay. Stomata are tiny holes that they cannot be seen through our naked eyes. ये हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, जबकि ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर हैं जो कि हम सिर्फ माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं. Next we have concept check on the page number 26, and we will do this concept check at your workbook, and you have to done these filling the blanks at your home. Next, reproduction. Animals reproduction
रिप्रोडक्शन क्या होता है कि एनिमल्स जो हैं अपने बेबीज प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसे क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन, ओके। और वही बेबीज जो हैं दोबारा से ग्रो करके बिल्कुल उन्हीं के जैसे दिखते हैं और दोबारा से वो बेबीज प्रोड्यूस कर सकते हैं। एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस। अब एनिमल्स जो हैं अपने बेबीज को बर्थ पैदा कर सकते हैं। अदर एनिमल्स सच एज बर्ड्स, अब कुछ और एनिमल्स की बात की जाए तो जिसमें बर्ड्स आ जाते हैं, रेप्टाइल्स आ जाते हैं और इंसेक्ट्स आ जाते हैं। इंसेक्ट्स मीन कीड़े मकोड़े, प्रोड्यूस एग्स, ओके। अब रेप्टाइल्स में कौन कौन आ जाते हैं, रेप्टाइल्स में आ जाते हैं क्रोकोडाइल, लिजर्ड, ओके। इन दीज वेज एनिमल्स रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड, ओके। इसी तरह एनिमल्स जो हैं अपने नंबर में इंक्रीज कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस होकर अपनी तादाद में इंक्रीज कर सकते हैं, ओके। एज यू सी दैट द बेबी गर्ल ग्रो इनटू एन अडल्ट, ओके। These babies grow and look like just their parents, okay. Next, most plant produce seeds. अब एनिमल्स तो रिप्रोड्यूस करते हैं, ओके। अब कुछ जो होते हैं प्लांट्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, प्लांट्स अपने सीड्स की मदद से, अपने बीज की मदद से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स, जैसे कि हम जब भी कोई बीज बोते हैं तो उससे एक नया प्लांट निकलता है। सम प्लांट्स कैन प्रोड्यूस बेबी प्लांट, कुछ प्लांट्स होते हैं वो अब खुद से बेबी प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे फ्रॉम देयर स्टेम या लीव्स की मदद से बेबी प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके घर में गुलाब की कलम काट के उसकी स्टेम जो होती है वो काट के जब आप ज़मीन में लगाते हो तो वो एक नया प्लांट बना लेता है, ओके। सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल। इन दिस वे अडल्ट प्लांट, जो बड़े प्लांट्स होते हैं जिनमें ट्रीज आ जाते हैं, प्रोड्यूस यंग प्लांट, ओके। वो भी छोटे प्लांट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। इसे कहते हैं रिप्रोडक्शन, कि एक लिविंग थिंग्स खुद से अपने ही जैसा दूसरा यंग वंस या फिर बेबी जो है जनरेट कर सके, जो कि ग्रो करके दोबारा बिल्कुल इसी जैसा दिखे और इसी जैसा काम कर सके। अंडरस्टैंड स्टूडेंट? सो दिस इज रिप्रोडक्शन। Dear student, here lecture number 5 is complete. Do all the written work on your workbook and revise all the topics that we learned today. See you in the next lecture in new lesson. Till then, Allah Hafiz, fi man Allah.